Hello everyone, how are you all? Hope all are doing good. Welcome back to my YouTube channel, PhD Digital Maths. In this session, we are going to start sample paper 3. Sample paper 2 का 3 सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है and you will get the PDF also for the same sample paper in the description box. And those who have missed the sample paper 2 लिंक आपको ऊपर पॉपअप हो जाएगा, सो यू कैन गो एंड चेक द सैम्पल पेपर 2. अच्छा, अभी सैम्पल पेपर 3 करेंगे. सेम सेक्शन ए एक सेशन, सेक्शन बी दूसरा सेशन एंड सेक्शन सी तीसरा सेशन. 3 सेशन में एक एक सैम्पल पेपर हम कंप्लीट करेंगे. सो आप लोग भी अगर मेरे साथ ही करोगे देन आपको ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा. एक एक सैम्पल पेपर हम कर पाएंगे खत्म. ओके, सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. First question, Neil has a toy in the shape of the right circular cone whose height and the radius are in the ratio 12:5. If its volume is 2512 cm cube, find the radius of the cone. Use pi is equal to 3.14 instead of 22/7. अगर आपको दिया जाता है पाई का वैल्यू, जो दिया जाता है वही यूज करना है. ओके, सो गिवन क्या है? गिवन height is to radius. Okay, height is to radius is equal to 12:5. अगर रेशियो में दिया है देन हमें x लेना पड़ेगा. Let h be 12x, okay, and r be 5x. Now volume of the cone is given. Volume of the cone is equal to 2512 cm cube. We will put the formula of the volume of the cone. क्या है formula? 1/3 pi r square h is equal to 2512. just यहाँ पे हमें put करना है values. 1/3 multiplied by 3.14 multiplied by r square, that means 5x. तो यहाँ पे क्या होगा? 25x square multiply by h is 12x is equal to 2512. अभी यहाँ पे सिर्फ x क्यू रखेंगे, बाकी सब उधर शिफ्ट कर देंगे. ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू 2512 multiplied by 3 upon 3.14 multiplied by 25 multiplied by 12. आपको सिंप्लीफाई ये पूरा करने के बाद x cube is equal to 8 you will get. now x cube is equal to 8, तो x क्या होगा? x is equal to 2. 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा. हो गया. अभी क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन. सो रेडियस को हमने क्या लिया था? 5x. therefore radius is equal to 5x. that means 5 into 2 10 cm. hence radius of right circular cone is 10 centimeter. ओके, सो फर्स्ट का एक हो गया, दूसरा वाला अभी करेंगे जो कि और में दिया है. ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose surface area is 150 cm square. इजी है. let the edge of the cube be a centimeter. let edge of the cube बी ए सेंटीमीटर. क्योंकि हमें कोई पता नहीं है तो इंस्टेड ऑफ एक्स ए भी ले सकते हो आप लोग. ए सेंटीमीटर. सो गिवन क्या है? गिवन इज इक्वल टू सरफेस एरिया दिया है. सरफेस एरिया इज इक्वल टू 150 cm cube. now put the formula of surface area of a cube. 6a square is equal to 150. So a square is equal to 150 upon 6, that is 25. a का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट 25. that means plus minus 5
बट लेंथ के लिए हम लोग प्लस ही कंसिडर करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। सो रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फॉर्मूला, ए क्यूब, ओके, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ए क्यूब, तो ए की जगह पे 5 क्यूब, that means 125 cm³ is your final answer. Hence volume of the cube is, volume of the cube is 125 cm³। डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, if the mean of the following distribution is 6, then find the value of p। ओके, गिवन क्या है, मीन इज इक्वल टू 6 दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, summation of fixi upon summation of fi। okay, fixi, summation of fixi upon summation of fi। now हमारे पास xi है एंड fi है, fi xi हमें निकालना है, तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, 2 3s are 6, 4 2s are 8, 6 3s are 18, this will be your 10p and this is 24। अभी समेशन ऑफ fi xi निकालना है, तो समेशन ऑफ fi xi कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। सो हियर यू विल गेट 14, 14 plus 18, 32 plus 24, 56 plus 10p। so here 10p plus 56 upon summation of fi। so यहाँ पे ना आपको लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है यहाँ पे, 10p plus 56 it will be your 10 plus p, 3 3s are 6, 6 plus 4 10, 10 plus p, 10 plus p। so given क्या है, 6 is equal to 10p plus 56 upon 10 plus p। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, so cross multiply with 6, 60 plus 6p is equal to 10p plus 56। 60 minus 56 is equal to 10p minus 6p। so 4 is equal to 4p। so p का वैल्यू क्या आएगा, p is equal to 1। hence the value of p is 1। okay, question number 3, a cone, a hemisphere and a cylinder stand on equal bases and have same height, find the ratio of their volume। let the r radius of cone, हेमिस्फीयर और सिलेंडर क्या होगा, बी आर, ठीक है, एंड हाइट HIGHT, हाइट ऑफ कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। आप लोगों को जब लिखोगे पूरा लिखना है, यहाँ पे टीचर लिख रहे हैं आधा आधा करके, वहां पे नहीं लिखना है, BH। Now question is volume of cone is to volume of hemisphere is to volume of cylinder। ये है हमारा क्वेश्चन। अभी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूलाज डाल देंगे। क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई r square h is to 2/3 pi r cube is to pi r square h। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो 1/3 pi r square h is to 2/3 pi r cube into r मैं लिखूंगी is to pi r square h। अच्छा r क्यूब, सॉरी r स्क्वायर इंटू r क्यूब को मैंने डिवाइड किया, बट चिल्ड्रन हेमिस्फीयर क्या है, ये होता है हेमिस्फीयर, राइट। सो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है
जो रेडियस होता है वही हाइट भी होता है, राइट? तो उसका रेडियस और हाइट इक्वल होता है यहाँ पे। सो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर एच इज टू 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज टू पाई आर स्क्वायर एच। ये क्यों किया? क्योंकि हर एक जगह पे कट हो जाएगा। फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल टू हाइट, इसका रेडियस जो होता है हाइट भी सेम ही होता है। सो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है फॉर हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू h, ये ब्रैकेट में मेंशन करके उसके बाद लिखोगे। अभी सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1। ओके, सो अभी इसको रेशियो में चेंज करना है। रेशियो में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। तो 1/3 इज टू 2/3 इज टू 3/3। सो फाइनल आंसर क्या है? Therefore, ratio of their volume is 1:2:3, जो कि 3 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, 1:3 हो गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सर्कल कट हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन में फिगर दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। अच्छा, रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा? अभी यहाँ पे पी टी जो है, क्या है पी टी? पी टी टेंजेंट है। सो हियर ओपी इज रेडियस, पीटी इज tangent. So according to the theorem, we know that tangent is perpendicular to radius at the point of contact. So यहाँ पे लिखना है, we know that tangent is perpendicular to radius at the point of contact. Point of contact. Okay, ये लिखना पड़ता है, हमें पता है थ्योरम, बट हैव टू राइट। सो देयरफॉर OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हुआ, ट्राइंगल POT इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle. So here we can use which theorem? Pythagoras theorem to find out the value of x. Okay, by applying Pythagoras theorem, in triangle POT, ट्राइंगल POT में क्या होगा? OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे आपको वैल्यूज डालना है। OT के जगह पे x+2 का होल स्क्वायर, OP के जगह पे x-6 का होल स्क्वायर, PT के जगह पे x+1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 212, सॉरी माइनस, ये माइनस होगा, a माइनस ab है ना, ये माइनस होगा, दिस विल बी योर माइनस। ओके, this is minus 2x plus 36 plus x square plus 2x plus 1. Now x square plus 4x plus 4, इधर आपको आएगा 2x square minus 10x plus 37. ओके, वो पूरा LHS में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। LHS में शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर -14x plus 33 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा इधर का उधर आ जाएगा, साइंस भी चेंज हो जाएंगे। तो आपको अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे,
किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और प्लस माइनस करेंगे तो -14. So -11x minus 3x plus 33 is equal to 0. x कॉमन ले लिया, x minus 11 minus 3 कॉमन ले लिया, x minus 11 is equal to 0. So x minus 11 again x minus 3. So x का वैल्यू दो वैल्यू आया, therefore x is equal to plus 11 and 3. Okay, x का वैल्यू plus 11 and 3. अभी रेडियस निकालना है, इतना काफी नहीं हुआ, रेडियस अभी निकालना बाकी है. चलो रेडियस निकालते हैं. अभी यहाँ पे मैं उसी का कंटिन्यूएशन कर रही हूँ. ओके, इन बट x, अच्छा x इज इक्वल टू 11 and 3. सो रेडियस इज इक्वल टू OP. Radius is equal to OP. How much? X minus 6. X minus 6. हमें पता है if x is equal to 11, OP is equal to 11 minus 6, 5. If x is equal to 3, OP is equal to 3 minus 6 is equal to -3, जो कि गलत है, नेगेटिव में आ रहा है डिस्टेंस. So what we should consider here? The answer will be your 5 centimeter. Therefore, radius of the circle is 5 centimeter. Okay, radius of the circle is 5 centimeter. Question number 5. If the diameter of the garden roller 2 meter long and is 1.4 meter, then how much area will it cover in 7 revolution? अच्छा, रिवोल्यूशन का जब भी क्वेश्चन आता है एक ध्यान में रखो, CS से ही निकलेगा, क्योंकि सर्कुलर का क्या होता है, CS से ही होगा. पहले लिखो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 revolution is equal to CSA of roller. CSA of the roller, roller कौन सा सिलेंडर के शेप में रहता है, is equal to फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h. कौन से शेप में यहाँ पे लिखना है, since garden roller is cylindrical shape. Okay, so यहाँ पे 22/7 multiplied by 1.4/2 स्क्वायर इंटू 2. ये क्यों किया 1.4/2? क्योंकि 1.4 डायमीटर दिया है, 1.4 डायमीटर है. अगर हमें रेडियस निकालना है, 2 करना है, एंड h जो लॉन्ग है, ये क्या होता है, हाइट होता है. ठीक है, ये लॉन्ग जो है वो हाइट में हम कंसिडर करेंगे. नाउ 22 इंटू, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0.1 इंटू 0.7. चलो ये देखते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई 7, हाँ यहाँ पे 0.1 हो जाएगा. ओके, डायरेक्टली मैं आपका आंसर ही लिख रही हूँ, 3.08 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा. 1.4 जो है 7 से सिंप्लीफाई होगा, 0.1 आएगा और एक 7 आएगा. ठीक है, तो ये आप लोग सिंप्लीफाई कर लो. नाउ देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 7 रिवोल्यूशंस, एरिया कवर्ड इन 7 रिवोल्यूशंस क्या होगा, 7 इंटू एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन. सो 1 रिवोल्यूशन के कितने आया, 3.08 मीटर स्क्वायर. सो फाइनल आंसर विल बी 21.56 मीटर स्क्वायर. एक बार रीचेक करो कितना आ रहा है, 7 multiplied by 3.08, 21.56 मीटर स्क्वायर. हेंस क्वेश्चन क्या है,
area, hence area cover in 7 revolution is 21.56 meter square. Okay. Question number 6. Again यहाँ पे दो questions है और में excuse me. Following table shows sale of shoes in a store during the month. Shoe size दिया है, number of pairs sold दिया है. Find the model size of shoes sold. ओके यहाँ पे मॉडल साइज का निकालना है तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 25. अगर 25 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है एंड द ऑब्जर्वेशन विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज क्या है, अगर 25 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसका ऑब्जर्वेशन क्या है 5, तो वो भी लिखना है. एंड ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम frequency is 5. Therefore, modal size of the shoe sold is 5. Mode is observation with maximum frequency. Mode क्या है, जो maximum frequency है वही observation को हम लोग consider करते हैं. Therefore, modal size of the shoes sold is 5. ठीक है, छोटा सा था. चलो उसके और वाला भी करते हैं. If mean and the mode of a certain distribution is given, find the median. Okay, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. सब दिया है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो. So mode is given how much, 7.8 is equal to 3 median निकालना है हमें, and 2 multiplied by 10.5. okay, then 7.8 is equal to अभी मल्टीप्लाई करो, 2 multiplied by 10.5 that is 21. 3 median, median is equal to 21. Now 7.8 plus 21 आपका आएगा 3 median. So this will be your 28.8 is equal to 3 median. 28.8 upon 3 is equal to median. So final answer आपका क्या आएगा? Answer will be 9.6 is equal to median. Okay. So यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे? Hence median of the distribution is 9.6. okay, so this is the formula. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. ये आपका फॉर्मूला है, जस्ट उसके ऊपर वैल्यूज डालना है आपको. आफ्टर दैट फाइंड आउट मीडियन. ओके, सेक्शन ए इज ओवर चिल्ड्रन. एंड अगर कुछ किसी को कुछ डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो. एंड जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. सी यू in the next session with another section, that is section B. Bye bye.